Hello everyone. Today we will start the last topic of your toxicology, right? That is opiates. What are the opiates? What is the opiates poisoning? How to manage the opiates poisoning? So before going to opiates, I want to discuss with you that is nerve signal transmission. Okay. So how the nerve transfer the signal, or you can say stimuli. Okay, so we will see this. Okay. So if you see the nerve, this is a nerve. I will not draw the cell body of the nerve. I will directly draw the axon, and these are the axon bulb at the end. Inside the cell, this nerve, there is a axoplasm. Okay, and this is the outside. So basically, this is the nerve cell membrane, because nerve is nothing but the cell which is present in the central nervous system. So how the impulse travels from here to bulb, from bulb to next nerve, that what we are learning today, right? So nerve, whenever it is in resting phase, so it will not transfer, or there is a no stimulus to transfer. At that time the nerve is in resting phase. Okay, here also the nerve is polarized. Here also the nerve is polarized at the resting stage. How the nerve is polarized at the resting stage? By excess of sodium out, सोडियम बाहर रहेंगे, एक्सेस सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड. ओके, इनसाइड क्या रहेंगे? पोटेशियम इनसाइड. So if you see sodium and potassium, they are outside and inside. So to make it polarized, we will need the different signal. The one pole should be positive and another pole should be negative. So we are saying that this is a polarized nerve, and if you want to make it polarized, some side should be negative. So inside there are protein molecule. Inside there are protein molecule, or you can say nucleic acid. They are negatively charged. They are negatively charged. So protein molecules negatively charged, nucleic acid negatively charged. So now you can see more positivity is out and less positivity is inside, and this is the reason your nerve at resting phase, it is the polarized. कैसे polarized हुआ? क्यों पॉजिटिव बाहर है? कि बाहर सोडियम है, अंदर पोटेशियम पॉजिटिव है, but along with that there is a negative. Lot of times student are confused. They thought कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए. ऐसा नहीं रहता. इफ देयर आर 10 पॉजिटिव आउटसाइड and here it is 9 positive ion, it means that here it is 1 less or 1 negative. So this is how this become negative and this one is positive pole. Same thing you have to apply here inside the nerve. Okay, तो ये हो गया आपका resting period. So during resting there is one thing you have to remember: potassium ion diffuses from inside to outside. So during resting, this potassium ion, they can move from in to out. तो क्या हो रहा है? पोटेशियम बाहर जा रहा है. रेस्टिंग में बाहर जा सकता, तो पॉजिटिविटी और बढ़ रही है बाहर की, और नेगेटिविटी ऑलरेडी अंदर है as compared to the sodium. So this is the thing which is happening during the resting period. So during resting, potassium ion diffuses from in to out slightly as compared to the sodium. So diffusion चालू रहेगा आपके नर्व ये सेल मेम्ब्रेन से, but potassium more diffuses as compared to the sodium. लेकिन ये कब चल रहा है सारी चीजें? Resting period. That is the resting. And because of this polarity, there is a development of resting potential or action potential. Not really action potential. Action थोड़ी है ये. रेस्ट करने के वक्त पोलैरिटी हो गई ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं resting potential. Okay, and whenever we are talking about the potential, we measure in terms of millivolt. Okay, so now this nerve is not stimulated, unstimulated है आपका ये nerve. कैसा है?
अनस्टिमुलेटेड है, देयर इज नो स्टिमुलेट, बट पोलराइज, पोलराइज तो है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइज भी है, राइट. सो हियर द रेस्टिंग पोटेंशियल, that is why it is called resting potential, that is 70 millivolt. Okay, approximately it is like 70 millivolt. Then after that there is a second stage that is called depolarization. Depolarization, resting के बाद second आएगा depolarization, whenever there is a stimulus. So I will draw stimulus here. अब इसे कोई स्टिमुलस मिला, कोई भी हो सकता है, पेन हो गया, कोई भी स्टिमुलस, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, जैसे स्टिमुलस मिलेगा डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा. कैसे होता है डीपोलराइजेशन? नाउ देयर आर 2-3 channels here. One is sodium channel, another is potassium channel, and third is sodium potassium channel. Okay, so I will make sodium red, okay, and the potassium green. So what happened during depolarization? Sodium channel open. Okay, so क्या होगा? Sodium moves in. Sodium moves in. So what happened? Positive charge going inside. Sodium channel open and positive charge go inside. Okay. Then what happened? At that time, अब जैसे पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था, अभी क्या हो गया? पॉजिटिव ज्यादा अंदर आ गया, अभी क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर निगेटिव हो जाएगा, राइट. नाउ जो पोलराइज था, अभी क्या हो गया? वो डीपोलराइजेशन. सो इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटसाइड निगेटिव. निगेटिव यानी क्या हो गया? बाहर के पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन. जो पोलराइजेशन था अभी उल्टा हो गया, डीपोलराइजेशन, राइट. एंड नाउ देयर इज अ जनरेशन ऑफ, ये तो एक्शन हो गया, तो रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं, अभी होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट. अभी क्या होगा? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. सो ये सोडियम अंदर जाते जाएगा, राइट. एक पर्टिकुलर लेवल के बाद धीरे 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 कम हो जाएगा. सो ये वेव्स है, एक सोडियम की अंदर जाने की एक वेव्स है. सो स्टिमुलस इस तरह से पास होगा, राइट. ओके, सो ये हो गया आपका वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, रीपोलराइजेशन. व्हाट इज रीपोलराइजेशन? Yes, here now potassium channel open. Now ये आपका waves हो गया इधर depolarization का. Now potassium channel open. Okay, potassium channel open. यहाँ कौन से हो गए थे? Sodium. Now potassium channel open, and because of that potassium ion goes out, and what happened? Again there is a positive outside and negative inside. So वापस क्या हो गया? बाहर पॉजिटिव बढ़ गए और अंदर नेगेटिव आ गया. देखो, रेस्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव था, डीपोलराइजेशन में उल्टा हो गया, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर. वापस अभी क्या हो गया? पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला इसको? रीपोलराइजेशन. सो दिस इज why potassium goes out, and that is why it is called the repolarization. धीरे 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 सोडियम का एंट्री क्लोज हो जाएंगे, सोडियम गेट धीरे 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 कम हो जाएंगे. जैसे जैसे आपका पोटेशियम ओपन होते जाएगा, सो सोडियम का जो एंट्री है कम होते जाएगा, राइट. सो दिस यू हैव टू नो दैट, क्योंकि अभी पोटेशियम बाहर ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉजिटिविटी बाहर ज्यादा हो गई है, और वापस किधर आ गए हम लोग? रीपोलराइजेशन. Now after that there is one lag period. This is called refractory period. Refractory period. ये period बहुत important है. In refractory period, what happens? There is a passage of action potential across the cell membrane. Okay. So refractory period with the passage of this action potential across the cell membrane. यहां क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या हो रहा है? बेसिकली एक्चुअली पोटेशियम बाहर है और अंदर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? सोडियम बाहर चाहिए था. पॉजिटिविटी आ गई है वापस, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी नॉर्मली सोडियम से आई है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? पोटेशियम.
हमें वापस सोडियम से पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन रिफ्रैक्टिव पीरियड देयर इज अ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल विच इज वोल्टेज गेटेड। अब हो गया आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड में, राइट, सोडियम पोटेशियम चैनल है ये। दिस इज योर विच वन? सोडियम पोटेशियम चैनल। एटीपी यूज करेंगे एनर्जी के लिए, सो इट इज सोडियम पोटेशियम चैनल। सो फॉर एवरी 2 पोटेशियम 3 सोडियम कम्स आउट, क्योंकि आपको वापस पॉजिटिविटी ही रखनी है, लेकिन किसकी वजह से चाहिए अभी आपको वापस? सोडियम की वजह से। सो वो जो पीरियड है पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी आ गई है, दैट इज कॉल्ड इन केस ऑफ रिपोलराइजेशन, लेकिन वो है आपकी पोटेशियम की वजह से, आपको चाहिए सोडियम की वजह से। एट दिस टाइम सोडियम पोटेशियम करके एक वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, एंड एट दैट टाइम पोटेशियम जो बाहर है अंदर जा रहे 2, उसके अगेंस्ट 3 सोडियम बाहर आ रहे। सो ज्यादा सोडियम बाहर आ रहे और कम पोटेशियम अंदर आ रहे, तो पॉजिटिविटी तो रहेगा ही, लेकिन वापस से सोडियम आ जाएगा। और ये कब होगा? आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड में। इस पीरियड में आप इंपल्स अगर दोगे या कोई भी स्टिमुलस इस नर को दोगे, क्योंकि नर का तो काम हो गया, अभी इंपल्स यहां से यहां तक चला गया, लेकिन यहां पर जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है में, तो आप कोई भी इंपल्स दो, दिस नर विल नॉट रिस्पॉन्स। So nerve will not respond in this period, okay, in refractory period। नए सिग्नल को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। यहाँ क्या हो जाता? सोडियम पोटेशियम पंप को 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट, आयन एक्सचेंज होगा, राइट, एंड एक बार कंप्लीट रिस्टोर्ड हो जाएगा, फिर तुम्हारा ये नर्व नेक्स्ट सिग्नल के लिए रेडी हो जाएगा, वापस दूसरा सिग्नल आ सकता है, या हो सकता है यही सिग्नल आपका सामने नेक्स्ट नर्व में चला जाएगा, राइट। देयर इज वन वर्ड हियर दैट इज कॉल्ड हाइपर polarization. That is called hyperpolarization. What is hyperpolarization? Okay, by the time sodium channel close, अभी क्या हो जाएगा? Sodium channel close, more potassium ion move out. Okay, so ज्यादा potassium channel बाहर जाएंगे तब तक. Okay, so by the time your पोटेशियम चैनल क्लोज होने से पहले मोर पोटेशियम चैनल गोज अबाउ आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली विच इज नॉट रियली नेसेसरी। अब क्या होगा? यहां पर सिर्फ पोटेशियम ही अगर ऊपर आ रहे और सोडियम अंदर आना तो बंद हो गया ऑलरेडी यहां से, और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड आया ही नहीं, तब यहां पर होगा आपका हाइपर पोलराइजेशन। क्या होगा? यहां पर पोलराइज है, ज्यादा पोलराइज हो गया, हमें ज्यादा पोलराइज नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एज गुड एज 80 मिली वोल्ट। ओके, सो हाइपर polarization, okay, it is because of more and more potassium moves out of the cell membrane than actual necessary, क्योंकि ये चालू नहीं हो रहा है, ये मैनेज नहीं कर रहा है, सोडियम को बाहर नहीं ले जा रहा है, पोटेशियम चलने दे रहा है, सोडियम पोटेशियम को ही बाहर जाना, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। सो मेम्ब्रेन बिकम मोर हाइपर पोलराइज। सो दिस इज इन शॉर्ट हाउ देयर इज अ कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, राइट। नाउ वी विल सी आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड ओपिएट्स। ओपिएट्स क्या करता है, राइट। सो बेसिकली आप लोगों ने अभी क्या देखा है? कंडक्शन में सोडियम पंप है जो सोडियम को अंदर लेके जा रहा है, पोटेशियम पंप है जो पोटेशियम को बाहर लेके जा रहा है। देयर इज वन मोर पंप विच इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या कर रहा है? रिफ्रैक्टरी पीरियड में पॉजिटिविटी वापस लेके आ रहा है सोडियम की वजह से, राइट। सो ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ओपिएट्स क्या करते हैं। ओपिएट्स बहुत सिंपल है, दे ओपन द पोटेशियम चैनल। याद रखना है आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है। ओपिएट्स, दिस पी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन, अगेन पी इज इंपॉर्टेंट, अगेन पोटेशियम चैनल। इतना सिंपल है। सो ओपिएट ओपन पोटेशियम चैनल। ओके, सो ये अगर पोटेशियम चैनल ओपन कर रहा है, सो देयर आर सम अनदर चैनल आल्सो रादर देन सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल आल्सो। सो दे इफ दे open the potassium channel, they have to close some channel, और C पर से
कैल्शियम, दे क्लोज द कैल्शियम चैनल। ये सेंटेंस आपको याद रखना है ओपिएट्स के लिए। सो ओपिएट्स ओपन द पोटेशियम चैनल एंड क्लोज द कैल्शियम चैनल। ओके, सो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओपिएट्स की एक्शन क्या है। अब ये ओपिएट्स एक्ट करने के लिए, इफ दीज आर द ओपिएट्स, there should be certain receptor. So there are opioid receptor. So this is the nerve cell. On nerve cell, ये जो आपके opiates है, जो भी drugs है opiates, there should be receptor, and this receptor are called opiate रिसेप्टर। ये कौन से रिसेप्टर है? ओपिएट रिसेप्टर। सो ओपियोइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट एंड ऑन दैट देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ योर ओपिएट। सो ओपियोइड्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द नर्व सेल। ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड्स क्या है? देयर इज अ कंफ्यूजन। ओपियोइड्स इज द थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, हम लोग बाद में देखते हैं। ओपियोइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग जो है विच एक्टिवेट द ओपियोइड रिसेप्टर। ड्रग भी हो सकते हैं या आपके बॉडी में भी कुछ केमिकल रहते हैं, वो आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी करते हैं, आपका पेन कंट्रोल करते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, देयर शुड बी अ ओपियोइड रिसेप्टर विच शुड बी प्रेजेंट ऑन द नर्व सेल, एंड ओपियोइड्स आर ग्रुप ऑफ द एनाल्जेसिक chemical, okay, and they will attach to the opioid receptor. This opioid receptor, they belong to the, there are various type of receptor. So this opioid receptor, they belongs to the family of, that is called G protein coupled receptor. G protein type of coupled यानी साथ में रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ओपिएट्स और ओपियोइड रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके, सो इफ यू सी एज पर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, that is called pharmacology, as good as in during 1996 जितना उन्होंने मेजर किया, there are like 2000 opioid receptors, there are like OP1, OP2, OP3, so many receptors are there. OP1 is named for dopamine, OP2 is for, that is for ketamine, that is KOP, OP3 is for morphine. So many opioid receptors are there, but that is not the important issue. So here we are seeing what is meant by G protein coupled receptor. So G protein coupled receptor यानी क्या कि ये G क्या है basically? So coupled receptor are found on cell membrane. So देखो ये है coupled receptor, ये है आपके नर्व की cell membrane. So they found on the cell membrane of the ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। जरूरी नहीं है हमारे भी यूकैरियोटिक ही सेल है, बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं, लेकिन हर में सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर रहते हैं यूकैरियोटिक सेल के। ओके, सो बेसिकली दे एक्ट एज इनबॉक्स ऑफ मैसेज। इनबॉक्स पता है ना आपको? इनबॉक्स में मैसेज आके रुक जाता है और जब आप उसको खोलोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो अंदर आ जाएगा और आप उसको देख लोगे। वैसे ही ये रिसेप्टर दे आर जस्ट रिसीव द मैसेज और वहां वो मैसेज रुक जाते हैं और फिर वो मैसेज अंदर जाएगा। सो दिस इज इन अ सिंपल वर्ड, दे रिसेप्टर और coupled receptor are called the inbox of the messages, right? And they are also called 7 transmembrane receptor. उसको दूसरा नाम क्या है? 7 transmembrane receptor, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं, राइट? नो, दिस रिसेप्टर दे बाइंड विद द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस। समझ लो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस है। सो दिस रिसेप्टर G protein coupled receptor हम लोग यहां निकालते हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, दिस इज द सेल, और ये हो गया आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये हो गया आपका G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो गया, राइट? सो दिस इज द सब्सटेंस। सो दिस रिसेप्टर दे बाइंड विद द, ये सेल के बाहर, तो सेल देखने के लिए आपको एक न्यूक्लियस निकाल देते, राइट? आपको समझ में आ जाएगा ये सेल है करके। सो दिस इज योर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस। सो दे बाइंड विद द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस एंड ट्रांसफर द सिग्नल इनटू द सेल। तो क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस को बाइंड हो जाएंगे एंड नाउ दे ट्रांसफर द सिग्नल
इनटू द सेल, और सेल के अंदर सिग्नल भेज देंगे, राइट, सेल या सेल मॉलिक्यूल के अंदर, राइट. So they send the signal into the cell molecule. And what is the molecule which is there to receive the signal? It is the guanine nucleotide binding protein. So this molecule जहां वो भेज रहे इसका नाम है guanine nucleotide binding protein. यहां भेजा ना उन्होंने, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन की तरफ भेजा है. तो देखा आपने, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस रिसेप्टर के पास आएंगे, रिसेप्टर उनको बाइंड होने के बाद कहां सिग्नल भेज रहे हैं, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, दिस जी प्रोटीन. समझ में आया आपको? दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड, किसके साथ कपल हुआ लास्ट में, जी प्रोटीन के साथ, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल. सो इसको पूरे असेंबली को हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर के साथ वो कपल्ड एक्शन है, उसकी साथ में एक्शन है बाइंडिंग प्रोटीन, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड बाइंडिंग प्रोटीन. And what exactly they causes? They causes the conformational change in the receptor and activate the G protein. जैसे ये इसको बाइंड हो जाएगा तो ये समझ लो आपका रेड कलर का रिसेप्टर है. इस रिसेप्टर में स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, ये आ गया स्ट्रक्चरल चेंज, इस तरह से अंदर चला गया, राइट. सो ये सब्सटेंस भी अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज, और इट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल. तो क्या हो गया, कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये इसको फॉर्म हो गया और सिग्नल अंदर चला गया. देयर इज वन कन्फर्मेशनल चेंज व्हेनेवर देयर इज अ लेस परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी है तो ये सब्सटेंस अंदर चला जाएगा, राइट. डिफ्यूजन हो सकता है, पैसेज हो सकता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है. लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से स्टिमुलस अंदर चला गया. किसके पास चला गया, जी ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. So this is very very important action of your which one, that is called G protein coupled receptor. Now what exactly is there? Opiates agonize the opioid receptor. Opioid क्या करते हैं, basically this opioids या opiates जो है आपके basically they agonize, agonism है उनका, किसको, इस opiate receptor को. They agonize the opiate receptor. कैसे, they open the potassium channel. They open, मैंने बोला ना आपको, opiates open the potassium channel. तो क्या होगा, पोटेशियम सेल के बाहर चला जाएगा, राइट, पोटेशियम सेल के बाहर चला जाएगा, राइट. एंड दे क्लोजेस द कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल को उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट. सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, सो पोटेशियम अगर बाहर जा रहा है, देखो नॉर्मली आपके सेल में सोडियम बाहर है और पोटेशियम अंदर है, राइट. सो दिस इज द रेस्टिंग, और इसको स्टिमुलेट होने के लिए सोडियम को अंदर आना पड़ेगा. सो बाहर नेगेटिव होना चाहिए और अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तब स्टिमुलस सामने जाएगा. अब क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दिया पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम ही बाहर आ रहा है, राइट, बहुत ज्यादा, तो पॉजिटिविटी और बढ़ रही है यहाँ पर बाहर, राइट. और कैल्शियम को अंदर नहीं आने दे रहे, राइट. सो कैल्शियम को अंदर नहीं आने दे रहे, सो बाहर ही पॉजिटिविटी बढ़ रही है. सो क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन होगा क्या, देयर इज नो डीपोलराइजेशन, देयर इज नो डीपोल. अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो वेव फॉर्म नहीं होगा और स्टिमुलस आगे नहीं जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाई देयर इज नो डीपोलराइजेशन विच इनहिबिट द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. अगर कोई पेन सिग्नल है, अगर आपको यहाँ पेन हो रहा है तो वो सामने ही नहीं जाएगा पेन, तो आपको पेन फील होगा क्या, नहीं फील होगा, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली, ओपिएट जो ड्रग आपने खाते हैं उनका एक्शन क्या है, दे एगोनाइज द ओपिएट रिसेप्टर. कैसे, वो पोटेशियम चैनल को यहाँ पर ओपन कर देंगे. जैसे ही पोटेशियम चैनल आपके नर्व एंडिंग में ओपन हो जाएंगे, राइट, तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव, तो आपका पेन सिग्नल ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, और आपको पेन फील होगा क्या, नहीं होगा, राइट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो बेसिकली हो क्या यहाँ रहा है, यहाँ पर पोटेशियम बाहर बहुत ज्यादा जमा हो रहा है. पोटेशियम अगर बाहर जमा हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन. क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है आपका मेम्ब्रेन का, राइट. सो इफ देयर इज अ हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो रहा है.
सो दैट इज हाइपरपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पोटेशियम। ये पूछते हैं बेसिकली हाइपरपोलराइजेशन कौन कर रहा है, पोटेशियम। डीपोलराइजेशन कौन करता है, सोडियम करता है, राइट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सोडियम को आने ही नहीं दिया अंदर, पोटेशियम को बाहर भेज दिया, बाहर पॉजिटिव बढ़ा दिया, कैल्शियम को भी अंदर नहीं आने दे रहे, तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है और नीचे अंदर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हुआ डीपोलराइजेशन, नहीं हुआ। नॉर्मली बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव रहेगा, सो पॉजिटिव अंदर जाना चाहिए तो ऑटोमेटिक बाहर का निगेटिव हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यहां क्या हो रहा है, अंदर के पॉजिटिव पोटेशियम बाहर भेज दिए, बाहर का पॉजिटिव कैल्शियम वगैरह अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो पॉजिटिविटी ही है बाहर, लेकिन इसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं, राइट। सो क्या हो रहा है, देयर इज नो डीपोलराइजेशन, देयर इज नो पेन सिग्नल, पेन सिग्नल ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर विच वन, ओपिएट्स। सो तब से हम लोग ओपिएट्स ओपियोइड्स बोल रहे हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जब मैं ओपिएट्स बोलूंगा तो क्या है होता है, और जब ओपियोइड्स बोलूंगा तो क्या होगा, राइट। ये सेंटेंस आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है, ओपिएट्स ओपन द पोटेशियम चैनल, तो क्लोज कौन करेगा, ओके, कैल्शियम क्लोज द, ओके, सो कैल्शियम, सो ओपिएट्स ओपन द पोटेशियम चैनल, कैल्शियम क्लोजेस कैल्शियम चैनल, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिएट्स and opioids? So opiates, they are alkaloid found naturally in the plant. कौन से plant? That is poppy plant, इसको हम लोग बोलते हैं poppy plant। उस poppy plant की जो pod रहते हैं ना, pod रहते हैं, राइट, उस pod के अंदर seed रहते हैं, राइट। so pod seed में यहां से निकलते हैं हम, राइट। सो इस प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट, जिसको हम लोग पैपावेरम सोमनिफेरम बोलते हैं, राइट। इसका नाम है पैपा, ये आपको पता है, वेरम सोमनिफेरम। ये सीड को निकाला जाएगा, राइट, फिर इस सीड को कट दिए जाएंगे, फिर यहाँ से सिक्रीशन बाहर आएगा, राइट, फिर वो सिक्रीशन ड्राई किया जाएगा और देन उस सिक्रीशन को इस तरह से निकाला जाएगा, दैट इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड another drug abuse drug, right? So but that is how we can take out the opiates. And what is opioids? Opioids क्या है फिर? Opioids are the medication, जो हम लोग medication use कर रहे हैं उसको हम लोग opioids बोलेंगे। So these are the medication which is used for the relief of the pain. So what are the types? Types भी उसके हैं, natural है, ये naturally जो मिलते हैं, सेमी सिंथेटिक, जो नेचुरल मिले उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर दो, सेमी सिंथेटिक हो गए, एंड सिंथेटिक यानी टोटली आपने इंडस्ट्री में बाय यूजिंग द केमिकल्स बनाए। सो दैट इज योर विच वन, ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स का डिफरेंस। सो कौन से नेचुरल ओपियोइड्स, अभी ओपियोइड्स देख रहे हैं हम लोग, ओपियोइड्स हम लोग कब यूज करेंगे, जब नेचुरल प्लांट के एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। सो वन इज नेचुरल, सेकंड इज सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, and third is artificial, or you can say totally synthetic। naturally जो मिलता है नाम opiates, उसको हम opiates ही बोलेंगे, that is called heroin, morphine, heroin हो गया, morphine हो गया, right, codeine। so these are basically the naturally। semi-synthetic, okay, hydrocodone, oxycodone, okay, so hydrocodone, oxycodone, right, so buprenorphine, देखो मॉर्फिन सिंथेटिक है, साथ में बुप्रो, दैट इज बुप्रोमॉर्फिन, सेमी सिंथेटिक, ओके, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, राइट। सो देखो ना इधर कोडेन है ना, इधर दिस कोडेन इज द नेचुरल, तो उस कोडेन के साथ आपने ऑक्सी ग्रुप लगाया, हाइड्रो ग्रुप लगाया, राइट। सो अभी ये सेमी सिंथेटिक बन गया, देखो हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, बुप्रोमॉर्फिन, राइट। सो दीज आर बेसिकली बुप्रोमॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फिन और ऑक्सीमॉर्फोन। सो ये सारे हो गए आपके सेमी सिंथेटिक। अब देखो सिंथेटिक के नाम कैसे, सिंथेटिक के नाम कैसे, मॉर्फिन वगैरह नहीं, यहां पर थोड़ा अलग नाम रहेंगे, डिफरेंट, टोटल डिफरेंट। फेंटानिल, कुछ दिख रहा है आपको, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, ये आपको याद रखना है, ओके। MHC, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन। अब देखो सेमी सिंथेटिक, तो मॉर्फिन नाम आ रहा है, ऑक्सीमॉर्फिन, बुप्रोमॉर्फिन, ओके, हेरोइन, कोडेन,
हाइड्रोकोडेन, ऑक्सीकोडेन, तो ये नाम आ रहे सेमी में, लेकिन सिंथेटिक में वो नाम ही नहीं आ रहे, दैट इज कॉल्ड फेंटेनिल। फेंटेनिल का नाम क्या है पूरा, डाइफिनॉक्सिलेट फेंटेनिल। ओके, सो इट इज लाइक डाइफिनॉक्सिलेट। ये नाम सुनकर ही आपको समझ में आता है कि नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल है, राइट। मिथेडोन, मिथेडोन, ओके, दैट इज कॉल्ड द मिथेडोन। ओके, ट्रामेडोल, these are your which one, artificial, that is called synthetic। ये हो गया आपके synthetic। बहुत सारे हैं, हम लोगों ने कुछ लिए, that is called मेपेरिडीन भी है एक, मेपेरिडीन। so these are your which one, artificial। इनकी एक्शन कैसी है, एक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है। ये क्या करते हैं, एक्शन ऑफ दिस ओपियोइड इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन पे सिस्टम में ये काम करता है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सारी सिस्टम है, CNS, CVS, RS हो गया, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, GI सिस्टम हो गया, हर जगह इसके रिसेप्टर है, राइट। सो दे हैव द एक्शन वेयर एवर द ओपियोइड रिसेप्टर देयर। सो CNS पे ओपियोइड रिसेप्टर है, CVS, RS, GI रिसेप्टर है, राइट। नाउ क्या एक्शन है इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन आपको याद रखनी है, दिस ओपियोइड्स की, या नेचुरल हो गए तो ओपियोइड्स की एनाल्जेसिक, पेन नहीं होने देते। पेन क्यों नहीं होने देते, मैंने हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है, लाइक सिडेशन, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया इज द एक्शन, और यू कैन से सिडेशन इज द एक्शन। सो जाएगा, राइट, एनाल्जेसिया में चला जाएगा। सो फॉर दैट सो मेनी रिसेप्टर आर देयर, ओपियोइड रिसेप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए, राइट। सो ये जो रिसेप्टर रहते, पेन रिसेप्टर रहते, right, so there are some receptor which is given in your book, that is mu receptor, kappa receptor, delta receptor, right. So mu receptor, K receptor, that is called delta। mu receptor किसके लिए रहते, एनाल्जेसिया के लिए, सिडेशन एक्शन के लिए, यानी ये है रिसेप्टर, राइट। ये रिसेप्टर पे एक्शन करोगे तो मियोसिस भी होगा, देयर इज अ मियोसिस होगा। ये रिसेप्टर पे एक्शन होगा तो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो डिमिनिश हो जाएंगे, राइट। कफ नहीं होगा, कफ सप्रेस हो जाएगा, राइट। ओके, देन आपका जो GIT है उसका मोटिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। ओपियोइड देने के बाद अगर वो म्यू रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है और GIT मोटिलिटी अगर वो कम कर रहा है, और किसी को कॉन्स्टिपेशन है, सब पेशेंट इज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, उसका मोटिलिटी नहीं है, और उसको अगर आप वापस ओपियोइड्स दोगे तो मोटिलिटी और कम करेगा, और तकलीफ होगी उसको, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर डीलिंग विद सम फार्माकोलॉजिकल ड्रग, यू शुड नो ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो ये हो गया उनके म्यू रिसेप्टर के एक्शन, वही ओपियोइड रिसेप्टर है, राइट। सो जी प्रोटीन। तो अब कैपा, कैपा रिसेप्टर सेम रहते, एनाल्जेसिया, सीडेशन हो गया, मियोसिस हो गया, राइट, इन डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हो गया, राइट। बट ये हॉल्यूसिनेशन करता है, ये चीज क्या ऐड होगी यहाँ पर, हॉल्यूसिनेशन ऐड कर दे, यहाँ पर हेलुसिनेशन, यहाँ पर यूफोरिया ऐड हो जाता है, यानी पेन कम कर दिया लेकिन यूफोरिया ऐड कर दिया, कैपा में हेलुसिनेशन हो गया, राइट। यहाँ पर इन केस ऑफ डेल्टा रिसेप्टर सेम, एनाल्जेसिया करता है, सिडेशन करता है, राइट, एंटी डिप्रेसिव भी करता है, ये एंटी डिप्रेसिव भी करता है, राइट, डिस्ट्रेस भी कम करता है, ठीक है, ये सारे अच्छी चीजें है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड, ये जो है स्पाइनल एनाल्जेसिया में ज्यादा इन्वॉल्व है, राइट, स्पाइनल एनाल्जेसिया, राइट, स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया में आपके ये डी रिसेप्टर काम। तो ये सारी ओपियोइड रिसेप्टर के नाम है, जी कपल रिसेप्टर। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली ड्रग एक्ट करेंगे और इस तरह से एक्शन देंगे, इसीलिए तो कफ सप्रेसेंट जब पुराने जमाने में यूज करते थे, पुराने जमाने यानी 20-30 साल पहले, उस कफ सप्रेसेंट में क्या रहता था, ओके, कोडेन वाले रहते थे, तो कफ तो सप्रेस हो जाता था क्योंकि इसकी एक्शन है, उस पर्टिकुलर मेडिसिन की एक्शन है म्यू रिसेप्टर के ऊपर की खांसी बैठ जाती थी, राइट, कफ कम हो जाता था, लेकिन साथ साथ में सिडेशन एनाल्जेसिया भी आ जाता, राइट। सो दैट इज व्हाई वी स्टॉप यूजिंग दिस ड्रग, धीरे 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 क्या हो गया, इसका यूजेस कम हो गया। सो ये हो गया उसके रिसेप्टर वाले एक्शन। तो कैसे लेते, अब ये तो एक्शन हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम लोग उसको यूज करते, ओरल, ओरल यूज करो या IV पैरेंट्रल, ओरल रूट कर सकते, पैरेंट्रल रूट कर सकते, राइट।
पेन किलर तो हम लोग रेक्टल भी देते, ट्रांसडर्मल पैचेस भी रहते, डिपेंड अपॉन किस तरह का ड्रग है। ओके, कोई भी ड्रग या मेडिसिन यूज करने के पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी देने से पहले उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, उसकी लिपिड। सो डिपेंड अपॉन लिपिड सोल्यूबिलिटी वी कैन गिव द रूट, लाइक ओरल रूट, पैरेंटल रूट, नेजल रूट, ऑल्सो रेक्टल, ट्रांस सपोजिटरी देते हैं ना रेक्टल रूट में, राइट। नाउ देयर इज अ हेरोइन इज यूजुअली अब्यूज ड्रग है। ये हीरोइन है, ये यूज ड्रग नहीं, इसको अब्यूज ड्रग बोलते हैं। इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अब्यूज ड्रग। ये आईवी और सबक्यूटेनियसली यूज लेते हैं लोग, इंजेक्शन से आईवी से ये हेरोइन ड्रग लेते हैं, राइट। बट दिस ड्रग ऑल्सो एब्जॉर्ब, यू कैन टेक इट, you don't have to because these are abuse drug, right? So people are taking that nasally also, right? क्योंकि ये lipid soluble है, these are the lipid soluble, right? So ये हो गया heroin, right? And that's what we are learning in case of toxicology. Opioid that toxicity कैसे रहती है, एकदम बेसिकली इमीडिएट इफेक्ट नहीं रहती इसकी, लेस प्रोनाउंस है, बट इट इज प्रोलॉन्ग। ये जो टॉक्सिसिटी रहती है ओपियोइड्स की, इट इज नॉट इमीडिएट, प्रोनाउंस नहीं रहती है, एकदम से दिखती नहीं है। दिस इज अ प्रोलॉन्ग विद इंजेक्शन, राइट। सो इंजेक्शन वाले जो इसके इफेक्ट है वो स्लोली एंड प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए दिखते हैं। ओके, समझ लो आईवी इंजेक्शन दिया तो आपने, राइट। सो राइट, सॉरी, पैरेंटल अगर इंजेक्शन लिया तो क्विक आ जाएंगे। सो ओरल अगर आपने लिए तो स्लोअर प्रोलॉन्ग रहेंगे, और अगर आईवी लिए तो इसका quick response दिखेगा, right? Quick and for short time period. So this is all about your which one, that is called route of administration is also important. Absorption अगर oral लिया तो everybody know, injection होने के बाद small intestine में ही सब कुछ absorb हो जाता है, right? So absorption of the drug, small intestine, okay. And if you think about the metabolism, all your that is called opioid drug undergo the hepatic metabolism, okay. So metabolism जो है वो लीवर, और एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन है वो है किडनी। ओके, सो मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है इसका, एंड एलिमिनेशन थ्रू द किडनी। सो एलिमिनेशन कहाँ से है, दैट्स थ्रू द किडनी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोई भी ड्रग। सो ओपियोइड्स कहाँ से निकलते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, दैट इज द नेम ऑफ द प्लांट इज पापावेरम सोमनीफेरम, राइट। एंड दिस ड्रग यूज like in class like for pain, analgesia and sedation, right? Analgesia और sedation के लिए हम लोग ये opiates use करते हैं, right? We already know there are various central nervous system and peripheral nervous system receptor of this opiates, like they have an analgesic effect, euphoric effect, hallucination वाले effect है, right? थोड़ा सा anxiety भी कम करते हैं, right? So these are the effect of your which one, that is called opiates drug, right? So ये उसके effects है। अभी हम लोग देखते हैं, इफ somebody is of opioid poisoning or toxicity, तो फिजिकली वेन एवर वी आर एग्जामिनिंग सच पेशेंट क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, राइट। सो ओपियोइड्स के बाद आपका जो सीवीएस रहेगा, आरएस रहेगा, जीआईटी रहेगा, राइट, सीएनएस है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, राइट। सो वाइटल्स जो रहता कभी भी हमारा, हार्ट रेट रहता, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, ओके, ये हमारे सारे वाइटल्स है, राइट। सो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और हो सकता है जितना है उतना ही रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट, ओके, दैट इज ऑल्सो डिक्रीज, ब्लड प्रेशर, ओके, दैट इज डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज, सीएनएस के थॉट परसेप्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो कैसे देखते हैं हम लोग, जीआई मोटिलिटी कम होगी, स्टेथोस्कोप लगा के हम लोग सुनते हैं बॉवेल साउंड, अगर मोटिलिटी है तो एक आवाज आता है। वैसे भी आप देखो, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर 1.5 hour अगर आप सुनोगे पेट के पास कान लगा के, तो आपको एक आवाज आएंगे अंदर से, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द, दैट इज कॉल्ड, जब वो डाइजेस्ट करते रहता स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। न्यूरोलॉजिकल में अगर इफेक्ट बढ़ता गया तो हो सकता है पेशेंट सीडेशन में जाके कोमा में भी जाएगा, राइट। उसको सीजर्स भी आ सकते हैं, राइट। एंड ऑकुलर साइन में, so what are the investigation you can do in case of this opiate overdose, जिसको हम लोग बोलते हैं, या पॉइजनिंग की जगह, राइट। सो लेबोरेटरी में हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, राइट।
So you can check the serum drug level. Okay, that is, if it is salicyclate, you can check the serum salicyclate level, right? You can see also the electrolyte भी disturb हो सकते हैं इनके वजह से, electrolyte imbalance हम लोग check कर सकते हैं, creatinine वगैरह हम लोग, ये सारी चीजें overdose में. Okay, these are the laboratory investigation we can do in case of opiate overdose. Urine is very important. Urine examination is very important. So urine tox screen जिसको हम लोग बोलते हैं should not be routinely obtained. Positive test can indicate recent use but not current intoxication. Positive अगर आपको मिला तो क्या होगा, recent use अगर हुआ होगा तो आपको urine में मिलेगा, right? लेकिन prolong अगर use करता है तो you cannot really see in case of urine examination, right? So many opioids, especially like synthetic, they produces false negative results. They produces false negative results. Whatever the result you are getting is the false negative results, and you already know many opioids, especially synthetic, they produce the false negative results. So urine tox screen important है, but it's not reliable. आप ECG कर सकते हैं. So in case of ECG you can see prolonged QTC interval, right? So methadone की वजह से QT interval prolong हो सकता है, right? Now the last is management. The last is the management. How will you manage the opiate overdose, right? So initially you should focus on same thing, ABC, like airway, breathing and circulation. So आप airway और breathing को आप ठीक कर लो सबसे पहले तो. उसके बाद the antidote is IV naloxone. That is, this is the antidote you have to remember in case of, that is called opioids overdose or opioid poisoning, that is called IV naloxone, right? So if patient is having not really breathing, इसको हम लोग apneic patient बोलते हैं, right? So if patient is apneic, okay, and it is in hypotension, so you have to give the oxygen. You have to give the oxygen along with the IV fluid management is also important, right? So IV infusion of the naloxone is very important. Ventilatory आपको support देना है साथ में. So this is all about your which one, that is called IV naloxone and management of your, that is called opioid overdose, right? Activated charcoal and gastric emptying are almost never indicated. This is very important, okay? So गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या गैस्ट्रिक लवाज हो गया या चारकोल यूज करना है आपको, दीज आर नॉट रिकमेंडेड, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिवेटेड चारकोल, गैस्ट्रिक लवाज, they are never ever recommended in case of, that is called the opioid poisoning, right? Basically because of the large volume of distribution of opioid, okay, तो क्या हो जाएगा, आप रिमूव नहीं कर पाते उसको, right? So basically they don't have any that is called uses. They don't have any uses, right? So you can do the hemodialysis, okay, but there is no use of gastric lavage or using of activated charcoal. So this is all about your which one of the most important topic, that is called opiates and its adverse effect of overdosing.